हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद सीके। बच्चों, एज वी वर स्टडिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लास 8 साइंस, we already have discussed about the chapter. We have completed the chapter in two parts, and now we are going to study the keywords, the summary of the chapter, and question answer. Okay, so I am going to start from the keywords. So let's learn the keywords. What are the keywords? Keywords are the important words of the chapter which make us understand the whole chapter, the main motto, and the important words which are applicable to that chapter. Okay, related words that are very important that we should understand it, and it will help us to learn the chapter in a proper way. Okay, so let's learn the keywords. So first keywords is agricultural practices. So what is agricultural practices? Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. Okay. Normally what happens, agricultural practices is what? It is the cultivation of crop, all the practices done to cultivate the crop. So cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. These activities or tasks are referred to as agricultural activities. These activities are listed below. 1. Preparation of soil, sowing. Third, adding manure and fertilizer. Fourth, irrigation. Fifth, protecting from weeds. Sixth, harvesting and storage. Okay, so these are the practices, agricultural practices, which is done to do the farming. Second keyword is animal husbandry. Okay, animal husbandry. So what is animal husbandry? Simple. In Hindi, it is called Pasupalan. What is Pasupalan? Animal reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter, and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Okay. So what it is normally farming of it is when animals are reared at the home. Okay, जब हम लोग घर में जानवरों को पालते हैं, पालतू पशुओं को पालते हैं, उनको प्रॉपर खाना देते हैं, निवास स्थान देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो इसी को हम लोग जो है, अगर ये जब बड़े स्तर में किया जाता है तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है. Third is crop. Crop is what? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. Okay. So very simple, no problem. Fourth is fertilizer. Fertilizer is what? Fertilizers are the chemical substance which are rich in particular nutrient. तो fertilizer हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब plants में किसी nutrient की कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग fertilizer का यूज करते हैं, और ये क्या है? एक chemical substance है. ओके, और एक fertilizer में किसी विशेष प्रकार का nutrients होता है. ओके. फिफ्थ, ग्रैनरीज. ग्रैनरीज ग्रैनरी स्टोरेज हाउस. बड़े स्तर पर जब अनाज को स्टोर करने के लिए जो है ग्रैनरीज का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रैनरीज और व्हाट? ग्रैनरीज आर द प्लेसेस मेड फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक इंसेक्ट एंड रैट. ओके, तो जब ग्रेन्स को जो है बड़े स्तर पर जब स्टोर किया जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, तो दैट इज कॉल्ड ग्रैनरीज. ओके, जहां पे जिस प्लेस में स्टोर किया जाता है. सिक्स्थ वर्ड इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज व्हाट? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. ओके, जब फसल जो है तैयार हो जाती है, जब उसकी कटिंग की जाती है, तो ये जो प्रोसेस है उसी को हम लोग जो है हार्वेस्टिंग बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इरिगेशन. इरिगेशन में सिंचाई. ये क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है वाटर प्रोवाइड करना प्लांट्स को एज पर देयर रिक्वायरमेंट. ओके, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. इंटरवल्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स के लिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है वाटर की,
तो उसी हिसाब से जब वाटर सप्लाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. खरीफ. खरीफ इज व्हाट? इट इज वन ऑफ द type of crop, okay, that is done in a particular season. The crop which are shown in rainy season, जो हम लोग फसल जो है बरसात के दिनों में उगाते हैं, that is called kharif crop, okay, are called kharif crop. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut, cotton, etc. are kharif crop, okay. जिन सारे पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जो बरसात के दिनों में जिनका जो है खेती की जाती है, उनको सारी को खरीफ क्रॉप बोलते हैं. नेक्स्ट इज मैन्योर. मैन्योर इज व्हाट? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, ओके. मैन्योर क्या होता है? मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ओके. ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कि वो नेचुरल चीजों से बना है, ओके. तो मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. जो भी खेतों में एनिमल प्लांट वेस्ट बच जाते हैं, घर के में जो एनिमल वेस्ट बचते हैं, जो काउ डंग, इन चीजों को जो है मैन्योर बनाया जाता है. डिकम्पोजिशन से मैन्योर बनता है, दैट इज कॉल्ड मैन्योर, ओके. Plow. Plow is what? This is being used since ancient time for tilling the soil. Plow is one of the agricultural practices, and this is being used since ancient time for tilling the soil. Okay. Adding fertilizer to the crop, removing the weeds, scrapping of soils, etc. Okay. This implement is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other एनिमल्स, हॉर्स और कैमल. ये क्या है? हल. हल को जो है प्लाव कहा जाता है. बहुत समय प्राचीन काल से ही जो है सॉइल को खोद खेती करने के लिए सॉइल को जो है खोदा जाता है, ओके. फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है, वीड से रिमूव किया जाता है, सॉइल को जो है स्क्रैप किया जाता है, ओके. ये सब जो प्रोसेसेस है, दैट इज डन बाय प्लाव, ओके. और ये जो औजार है, ये किसका बना होता है? दैट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स. इसको खींचा जाता है दो सांड के द्वारा, या हॉर्सेस भी यूज कर लेते हैं कभी कहीं, जहां पे जैसे अवेलेबिलिटी है उस अनुसार से. कैमल्स भी कहीं कहीं प्रयोग होते हैं, जहां जैसे जानवर अवेलेबल है वैसे प्रयोग होते हैं. रबी. रबी इज वन ऑल्सो वन ऑफ द क्रॉप, दैट इज type of crop. The crop grown in the winter season are called rabi crops. Okay. वो सभी जो क्रॉप्स जो हम लोग विंटर के सीजन में हम लोग उगाते हैं, उनको हम लोग जो है रबी क्रॉप कहते हैं. वे वैसे क्रॉप्स हैं जिनको कि कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और कम पानी की आवश्यकता होती है, इन कंपेरिजन टू खरीफ क्रॉप. और इनका जो टाइम पीरियड है, देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड, ओके. ये सभी जो है रबी क्रॉप के एग्जांपल्स है, जैसे कि व्हीट हो गया, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिंसीड है, ओके. नाउ नेक्स्ट कीवर्ड इज सीड्स. सीड्स. सीड्स आर द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट्स, है ना. सीड्स हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमको कोई क्रॉप ग्रो करना है तो हमको उसके लिए क्या आवश्यकता होगी? ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होगी जिससे नए पौधे आ सके, तो उनको क्या कहा जाता है? सीड्स कहा जाता है, ओके. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज साइलोज. साइलोज आर व्हाट? दे आर द large scale storage houses, okay. Silos are the large scale storage house of grain to protect them from pests like insect and rat, okay. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, वो जो है साइलोज में जो है अनाज का जो है स्टोर करते हैं, ओके. तो उनको जो है इंसेक्ट, पेस्ट और बर्बाद होने से बचाने के लिए. नेक्स्ट इज सोइंग. सोइंग इज व्हाट? सोइंग इज वन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन विच सीड्स आर सोन इन सॉइल, ओके. सोइंग क्या है? प्रोसेस है, सीड को जो है मिट्टी के अंदर जो है जब खेत तैयार हो जाती है, तो ये सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जिसमें कि बीज जो है सॉइल में जो है एक प्रॉपर डिस्टेंस में, प्रॉपर डेप्थ में जो है लगाया जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सोइंग. Next keyword is storage. Storage is what? Storage is an agricultural practices in which grains are stored with safety to protect it from pests like insect and rodents. Okay. स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज जो है
बहुत पुराना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, क्योंकि हम लोग सालों भर तो खेती कर नहीं सकते हैं। कोई एक अनाज को सालों भर नहीं उगाया जा सकता है, लेकिन हमें अनाज की जरूरत सालों भर होती है। तो स्टोरेज क्या है, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें कि ग्रेन को स्टोर किया जाता है सेफ्टी के साथ, उनको जो है इंसेक्ट्स से, जैसे कि और रोडेंट्स जो भी चूहे हैं उनसे बचाने के लिए। ओके, तो storage is an agricultural practices in which grains are stored with safety to protect it from pests like insect and rodents. Okay. Next is threshing. Threshing क्या है? Threshing is what? Separation of grains from the chaff. Separation of grains from the chaff is called threshing. जब अनाज तैयार हो जाए, जब क्रॉप तैयार हो जाती है, तब क्या होता है? ग्रेन्स जो उसमें होते हैं उसको जो है उसके पौधे से, सूखे पौधे से अलग करने का जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। ओके, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। नेक्स्ट इज वीड्स। वीड्स इज व्हाट? वीड्स खरपतवार क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप के साथ जो है उगाते हैं। सो इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली along with the crop. Okay, These undesirable plants are called weeds. जो भी पौधे जो हमको आवश्यकता नहीं है, हमारी इच्छा के विरुद्ध जो है हमारे खेतों में उग जाते हैं, उनको हम लोग weeds बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या है? जो आपने देखा कि वीड्स जो है, तो वीड्स को जो रिमूव करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस है उसको वीडीसाइड बोलते हैं। ओके, सो वीडीसाइड are the chemical substances we use to kill weeds in crop field. For example, 2,4-D. Okay. तो क्या है वीडीसाइड? वीडीसाइड जो है वैसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका प्रयोग किया जाता है खेतों में, जो है जो वीड्स ग्रो हो जाते हैं उनको मारने के लिए, है ना, उनको खत्म करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इज विनोइंग। विनोइंग इज व्हाट? विनोइंग is a method of separating components of a mixture by blowing air is called winnowing. Okay. कोई भी हम लोग आप लोगों ने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ा होगा, इसमें विनोइंग पढ़ा होगा। विनोइंग क्या है? जो बहती हुई हवा का प्रयोग करके कोई दो सब्सटेंस को जब अलग किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन, separating component of a mixture by blowing air is called winnowing. Okay, now come to the summary of the chapter. What you have learned, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? चलिए हम लोग समराइज करते हैं। In order to provide food to our growing population, we need to adapt certain agricultural practices. Okay, क्या है कि फूड जो है प्रोवाइड करने के लिए, और हमारा जितना जो पॉपुलेशन है उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडेप्ट करते हैं। ओके, some kind of plants grow and cultivated at a place constitute a crop. Okay, सेम काइंड ऑफ प्लांट, जब एक ही तरह के पौधे जो है एक जगह उगाए जाते हैं, तो उस जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग क्रॉप। ओके, जब एक ही प्रकार के पौधे जो है बड़े स्तर पर उगाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। इन इंडिया, क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ओके, हमारे देश में क्या है कि क्रॉप्स को जो है नॉर्मली दो जो है ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है, दो तरह का में, जिसमें एक सीजन के आधार पे ये किया गया है, जिसको कहते हैं रबी एंड खरीफ। ओके, इसके बारे में अभी हमने कीवर्ड्स में भी पढ़ा था। नेक्स्ट इज, इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग। ओके, ये बहुत ही आवश्यक होता है कि सॉइल को जो है प्रिपेयर किया जाए, कि इसके खोदने के द्वारा, और उसको लेवल किया जाए। पहले तो सॉइल को जो है खोदा जाए, उसके बाद उसको जो है उस सॉइल का लेवल को लेवल किया जाए। लेवल इसलिए किया जाता है ताकि जब इरिगेशन का प्रोसेस किया जाए, इरिगेशन किया जाए, तो वाटर का फ्लो जो है प्रॉपर हो। इसके लिए जो है लेवलिंग इज इम्पोर्टेंट। प्लाव एंड लेवलर्स आर यूज फॉर दिस पर्पज, और इस पर्पज के लिए क्या यूज करते हैं? प्लाव यूज करते हैं, लेवलर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, sowing of seeds at appropriate depth and distance give good yield. Okay,
जो सीड्स की सोइंग का प्रोसेस है, वो जो है सीड्स को एक प्रॉपर डेप्थ दी जाती है और एक प्रॉपर डिस्टेंस जरूरी होता है ताकि क्रॉप जो है से ज़्यादा पैदावार हो। हर पौधे को बढ़ने के लिए, उगने के लिए और प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर जगह, प्लेस, एयर, एवरीथिंग जो है अवेलेबल हो, न्यूट्रिएंट्स, इसके लिए जरूरी है कि एक प्रॉपर डेप्थ मेंटेन की जाए और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन की जाए टू सीड्स के बीच में। ओके, गुड वेराइटी ऑफ seeds are sown after selection of healthy seeds. Okay, सबसे पहले तो जब सो करना है, सोइंग ऑफ सीड्स करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास हेल्दी सीड्स हो। ओके, गुड वैरायटी की सीड्स हो ताकि क्रॉप प्रोडक्शन जो है हाई हो, है ना। सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल जो है एक औजार है जो कि प्लाव के समय यूज किया जाता है। ओके, और सीड को जो है सोइंग के लिए। Next, soil seed needs replenishment and enrichment through the use of organic manure and fertilizer. जो सॉइल्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से वो कम हो जाते हैं। ओके, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, कभी कभी खत्म भी हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेनिशमेंट जरूरी है, उनका एनरिचमेंट थ्रू वापस जो है सॉइल में जरूरी है ताकि हमको नेक्स्ट जो क्रॉप हम प्रोडक्शन करें तो हमको फिर से जो है अच्छी पैदावार हो। इसके लिए सॉइल्स नीड रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है बहुत ही जरूरी है सॉइल में डालना, एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, फर्टिलाइजर्स आर द स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हमें जो है फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करना चाहिए और ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनिक मैन्योर also provide humus that fertilizer do not provide. Okay, use of chemical fertilizer has increased tremendously with the introduction of new crop varieties. Okay, आज के समय में जो है केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, किसान जो है ज्यादा पैदावार के लिए इसका प्रयोग करते हैं। Supply of water to crop at appropriate interval is called irrigation. Okay, irrigation क्या है? irrigation एक प्रोसेस है जिसमें कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, जिस प्रकार का हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, जैसा सॉइल है उसकी वाटर कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिस प्रकार की है, उसी अनुसार से जो है इरिगेशन किया जाता है। एक प्रॉपर इंटरवल में सप्लाई ऑफ वाटर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। नेक्स्ट इज weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants, that is called weeds. Okay, weeding एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि जो भी अनवांटेड पौधे हैं और जो भी अनकल्टिवेटेड प्लांट है जिनको हमने बीज इसका हमने नहीं लगाया खेतों में और वो उग आते हैं, तो उनको कहते हैं वीड्स, और उनका रिमूवल प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। ओके, सो वीडिंग इज ए प्रोसेस एंड वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स। ओके, हार्वेस्टिंग क्या है? जब पौधे तैयार हो जाते हैं, फसल तैयार हो जाती है, तो मैच्योर क्रॉप को जो कटिंग का प्रोसेस है, खेतों से जो है खलिहान में लाने का प्रोसेस, जो खेतों से जो है काट करके जो है उससे जो है किसी एक पर्टिकुलर जगह में लाने जहाँ की फर्दर प्रोसेस की जा सके, तो ये जो कटिंग प्रोसेस है उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज separation of the grains from the chaff is called threshing. Okay, हार्वेस्टिंग के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या करते हैं, जो भी सूखा पौधा है, सूखा क्रॉप है, उससे ग्रेन्स को अलग करने का प्रोसेस को हम लोग जो है थ्रेशिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज proper storage of grains is necessary to protect them from pests and microorganisms. स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना कि ग्रेन प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है स्टोरेज। ओके, जो किसान ने अनाज का ग्रो किया है, कल्टीवेशन किया है, उसको प्रॉपर स्टोरेज करना जरूरी होता है ताकि उसको जो है पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके और लंबे समय तक प्रयोग के लिए अवेलेबल हो। इसके लिए स्टोरेज प्रॉपर जरूरी है।
Next, food is also obtained from animals for which animals are reared. हमें भोजन जो है एनिमल्स जानवरों से भी प्राप्त होती है और उसके लिए जो प्रोसेस है रेयरिंग प्रोसेस इसको हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री. ओके, that now we have completed the keywords and the summary of the chapter. Now I am going to start the exercise of this chapter. So kids and friends, please pay attention. Questions are very easy, but learning is very important. Now, exercises. Question number 1. Select the correct word from the following list and fill in the blank. Float, water, crop, nutrients, preparation. ओके, ये वर्ड्स आपके पास दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करके आपको जो है ये ब्लैंक प्लेसेस भरने हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1A. The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called what? जब एक ही तरह का प्लांट को जो है लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रॉप. ओके, तो आप यहाँ क्रॉप भर दीजिए. नेक्स्ट, बी. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, क्या है? जो पहला स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन से ग्रोइंग क्रॉप्स में पहला जो प्रोसेस है वो क्या है? आप क्या भरेंगे यहाँ पे? डैश ऑफ द सोयल, मतलब सोयल को क्या करना है? फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट, प्रिपरेशन. क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन. ओके, सो फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज preparation of the soil. Come to the next. C. Damaged seeds would dash on top of water. Damaged seeds क्या करेंगे? वाटर के ऊपर क्या करेंगे? देखिए आपके लिए पर्टिकुलर वर्ड है float. So damaged seeds would float on top of water. Next, for growing a crop, sufficient sunlight and dash from the soil are essential. तो आपके लिए क्या क्या वर्ड बचे हैं? 2 वर्ड्स चाहिए. लास्ट क्वेश्चन है क्या क्या जरूरत है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट. ओके, सो फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल. तो यहाँ पे हो जाएगा वाटर और यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. मैच द आइटम्स इन कॉलम ए with those in column B. कॉलम ए में जितने हैं उसको आपको कॉलम बी से मैच कराना है. ओके, फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स का क्या मैचिंग होगा? देखिए यहाँ पे आपके पास है ए में खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप्स है, केमिकल फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है. ओके, तो इससे आपको मैच कराना है. चलिए मैच कराते हैं. खरीफ क्रॉप. ओके, खरीफ क्रॉप को आप किससे मैच कराएंगे? यहाँ पे फूड फॉर कैटल ये हो सकता है? नहीं हो सकता है. यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट ये भी नहीं होगा. एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट ये भी नहीं होगा. व्हीट, ग्राम एंड पी ये भी नहीं होगा क्योंकि ये रबी क्रॉप्स हैं. ओके, पैडी एंड मेज दैट इज करेक्ट. ओके, सो खरीफ क्रॉप्स कौन से हैं? पैडी एंड मेज. जो रेनी सीजन में जो प्लांट्स ग्रो किया जाता है क्रॉप उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, जिसका एग्जांपल उसको हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं और उसका एग्जांपल्स है पैडी एंड मेज. नेक्स्ट, रबी क्रॉप. ओके, रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं जरा चेक करिए. रबी क्रॉप्स व्हीट, ग्राम एंड पी. ये देखिए आपका ये मैच हो जाएगा यहाँ पे. व्हीट, ग्राम एंड पी आर रबी क्रॉप्स. नाउ थर्ड, केमिकल फर्टिलाइजर्स. यहाँ देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं क्या? फूड फॉर कैटल नहीं. यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, यस, ये जो है केमिकल फर्टिलाइजर हैं, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. फोर, ऑर्गेनिक मैन्योर. ऑर्गेनिक मैन्योर जो प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते हैं. आपके लिए एक ही ऑप्शन बचा है, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. यही हो जाएगा. सो ऑर्गेनिक मैन्योर इज व्हाट? इट इज एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, urine and plant waste. So we have completed the question number 1 and 2.
Come to the question number 3. Give two examples of each. खरीफ क्रॉप, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल दिया खरीफ क्रॉप का, देखिए खरीफ क्रॉप पैडी एंड मेज. रबी क्रॉप इज हियर wheat, gram and pea. So हमारी ये we have completed the third question also. Come to the fourth question. Write a paragraph in your own words on each of the following. जो भी टर्म्स दिए हुए हैं उस पे आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है. चलिए मैंने पैराग्राफ लिख रखा है, मैं आपको बताता हूँ. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जब सॉइल की तैयारी की जाती है उस प्रोसेस को हम लोग जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं ना. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. Okay, क्या है? सबसे ये जो है एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जिसमें क्या किया जाता है, सॉइल को जो है लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है. ओके, दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. जब सॉइल जो है लूजन रहेंगे तो क्या होता है कि रूट्स जो है इसमें प्रॉपरली डीप तक जो है जाते हैं. द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल. It make them easy to breathe also. The process of turning and loosening is called plowing. This is done using plow, hoe or cultivator. तो इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे. Next is sowing. Sowing is the agricultural practices. Okay, so sowing is the process of putting the seeds into the soil. Okay, sowing क्या है? Seeds को जो है soil में रखना, उसके एक पर्टिकुलर डेप्थ में और पर्टिकुलर डिस्टेंस में. ओके, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वी नीड टू यूज क्वालिटी सीड्स फॉर सोइंग. Sowing is done manually by mechanical equipment like seed drill. Seeds of few plants like rice is first grown in a separate area and then transplanted in the field. Okay. तो सोइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें कि सीड्स को एक पर्टिकुलर डेप्थ और पर्टिकुलर डिस्टेंस में जो है सोइल में रखा जाता है. ओके, और इसके लिए हमें एक बेस्ट क्वालिटी की सीड की जरूरत होती है. और ये जो प्रोसेस हम लोग मैनुअली भी करते हैं और इक्विपमेंट का यूज करके भी करते हैं. ओके, कुछ प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं जिसका कि पहले ग्रो किया जाता है, उनका जो है सीडलिंग है ना, और उसके बाद उसको प्लांट ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी दूसरे जगह में. ओके, सो दैट इज सोइंग. नेक्स्ट इज वीडिंग. वीडिंग इज द ऑल्सो ए प्रोसेस. वीडिंग इज ऑल्सो ए प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स. So in a field, many other undesirable plants may grow along with the crop. These undesirable plants are called weeds. Okay. Farmers use many ways to remove weeds. Method to control weeds are tilling before sowing seeds. Physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground using certain chemicals called weedicides. तो weeding क्या है? Weeding is first of all, weed is a undesirable plant that grow along with the crop, and these undesirable plants are called weeds. Next is farmers use many ways to remove weeds. Okay, and tilling before sowing seeds. This is also a process. Next, physical removal of weeds by uprooting and or cutting them close to the ground. And third is using chemicals like weedicides. Okay, so you can write this in your answer. Fourth is threshing. Threshing is also one of the agricultural practices where threshing is the process of separating grains, okay, or seeds from chaff. जो सूखे क्रॉप है उससे जो है सीड्स को अलग करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग. ओके, इट इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. ओके,
It is usually carried out with the help of a machine known as combine. This machine is a combined harvester and thresher. ओके, ये जो प्रोसेस है थ्रेसिंग जो है आजकल मशीनों से की जाती है। मशीन का नाम क्या है? कॉम्बाइन। इसमें जो है हार्वेस्टर एंड थ्रेसर बोथ होता है। वो खेतों में जाकर के पौधे की कटिंग करता है, फिर उससे जो है अनाज को अलग भी करता है। सो हार्वेस्टर एंड थ्रेसर बोथ are in combine machine. Okay, it harvests plant as well as clean grains manually by winnowing also it is done. ये तो मशीन के द्वारा हो गया। नॉर्मली हवा का प्रयोग करके भी हम लोग जो है थ्रेसिंग करते हैं। ओके, दैट इज मैनुअली। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. आपको बताना है कि फर्टिलाइजर्स जो है मैन्योर से कैसे डिफरेंट है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है। चलिए मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखाऊं। ये चार्ट जो आपके पास है, ये यू कैन राइट दिस आंसर. ओके, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. सो फर्टिलाइजर इज व्हाट एंड मैन्योर इज व्हाट. फर्स्ट पॉइंट, a fertilizer is an organic salt. ओके, फर्टिलाइजर क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं। नेक्स्ट, मैन्योर इज ए natural substance. Manure natural substance that is obtained from by the decomposition of cattle dung. Okay, human waste and plant residue. तो मैन्योर जो है ये बनाया जाता है कैसे? ये नेचुरल वेस्ट से बनाया जाता है। काउ डंग, कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू. Next, second point of difference is a fertilizer is prepared in factories. Okay, this is prepared in fertilizer in factories. Manure is prepared in the field. Third difference, a fertilizer does not provide any humus to the soil. क्या है कि जो मैन्योर होता है दैट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, उसमें न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो वेस्ट पार्ट होता है वो सॉइल के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस. ओके, dead and decaying part of the plants, that is humus, is very important. It enriches the, it makes the soil soft and also increases the water holding capacity. Nutrients are also there. So manure provide humus to the soil, but fertilizer do not, because they are in the pure form. Second point of difference is fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Okay, chunki fertilizers are in the pure form, so they are very rich in nutrients, plant nutrients. For example, if you take nitrogen, okay, phosphorus and potassium, they are in the pure form, so they directly provide the nutrient to the plant. Okay, but manure is what? Manure is relatively less rich in plant nutrient because they are the organic waste, so they have little less nutrients in comparison to fertilizer, although manure is more better than fertilizer for our health reason. Come to the next question. Question number 7. If wheat is sown in the Kharif season, what would happen? Discuss. अगर क्वेश्चन ये है कि खरीफ वीट को हम लोग रबी सीजन में ग्रो करते हैं, बाय द वे अगर हम वीट को खरीफ सीजन में ग्रो करें, रेनी सीजन में ग्रो करें तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, if wheat plant will be grown in this season, that is Kharif season, then it will not provide us grain and the crop will destroy because of the following reason. देखिए, जब हम लोग wheat को जो है खरीफ सीजन में ग्रो करेंगे तो हमको तो पहली बात कि अनाज प्राप्त नहीं होगा, और दूसरी बात कि किस लिए नहीं प्राप्त होगा? प्लांट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, रीजंस क्या हैं? द वीट प्लांट विल नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ हेवी वाटर लॉग. खरीफ सीजन में खरीफ जो क्रॉप्स है वो उनको वाटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वाटर लॉगिंग की उनको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि पैडी, आपने देखा होगा धान के खेतों में कितनी पानी होती है,
अगर वीट के प्लांट में उतना पानी हो जाए, वीट क्रॉप के खेत में उतना पानी हो जाए तो क्या होगा, वीट क्रॉप जो है उसके प्लांट्स जो है सड़ जाएंगे। ओके, तो वाई, बिकॉज ऑफ हेवी वाटर लॉग, पहला पॉइंट कि प्लांट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर क्रॉप प्रोडक्शन के तो प्रश्न ही नहीं है। अगर बाय द वे अगर नहीं हुआ डिस्ट्रॉय तो भी उसमें जो है क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा। उसके रीजंस क्या हैं? Flowering will not take place. Flowering, okay, flowering will not, flowering will not take place due to long daytime and short night. Wheat plant को क्या होता है, फ्लावरिंग जो प्रोसेस होता है, मैच्योरिटी, उसके लिए एक क्या है कि उसको जो है लॉन्ग, वो जो F9, देखिए, हेलो, ओके बच्चों, नेक्स्ट जो रीजन है वो ये है कि फ्लावरिंग विल नॉट टेक प्लेस ड्यू टू लॉन्ग डे टाइम एंड शॉर्ट नाइट। खरीफ सीजन में क्या होता है कि दिन की लंबाई लंबी होती है और रात की लंबाई छोटी होती है। और ये जो है, ये जो डे एंड नाइट का ड्यूरेशन है वो फ्लावरिंग के लिए सुटेबल नहीं है वीट प्लांट के लिए, क्योंकि वीट प्लांट को जो है शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट की जरूरत होती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, ये आप फर्दर हायर क्लासेस में आप इसको समझोगे कि ऐसा क्यों है। थर्ड रीजन इज ग्रेन फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ फ्लावरिंग। और जब प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी ही नहीं तो ग्रेन्स का प्रोडक्शन कहाँ से होगा? सीड्स विल नॉट फॉर्म। ओके, तो इस तरह से जो है अगर आपने वीट का जो है प्लांट जो है वीट का क्रॉप जो है खरीफ सीजन में ग्रो करेंगे तो you will not get crop yield. Okay, so these are the reasons. Come to the next question. Question number 8. Explain how soil get affected by the continuous plantation of crop in a field. Okay, आपको बताना है कि कंटिन्यूस जब क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी खेत में तो उससे जो है सॉइल्स में जो है क्या किस तरह से वो प्रभावित होता है। हो तो सॉइल तो प्रभावित होता है क्योंकि जब कंटिन्यूअस क्रॉप प्रोडक्शन होता है, कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप होता है, तो प्लांट्स क्या है कि उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब कहाँ से आते हैं? सॉइल से आते हैं। मैग्नीशियम, ओके, फेरस, तो ये सभी सॉइल से आते हैं। तो सॉइल में अगर ये क्या होगा, फर्स्ट जो क्रॉप है वो इनको यूज कर लेगा, जो नेक्स्ट क्रॉप है उसको जो है उसको भी सेम रिक्वायरमेंट है तो वो उसको मिल नहीं पाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है आ, एक तो क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा और सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से सॉइल प्रभावित हो रहा है। ओके, और क्रॉप प्रोडक्शन भी प्रभावित हो रहा है। चलिए हम लोग कैसे लिखना है इसको हम लोग समझते हैं। आपको लिखना है, for good crop production, essential nutrients are required to the plants to which plants are getting from the soil. जो भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और प्लांट्स उसको कहाँ से प्राप्त करता है? सॉइल से। ड्यू टू कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास गेट डिप्लीटेड फ्रॉम सॉइल। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है सॉइल से वो कम हो जाएंगे कंटिन्यूअस प्लांटेशन से, ड्यू टू विच ग्रॉस क्रॉप यील्ड विल डिक्रीज फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट क्रॉप। ओके, पहले जो पहला क्रॉप प्रोडक्शन होगा, पहला जो होगा उसके बाद वाले जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो उसमें यील्ड कम आएगी। ओके, as plants absorb these nutrients to fulfill their requirements, there will be no nutrients for the second crop onwards. Okay, चूंकि फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन में ही काफी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया है तो सेकंड जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे और क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा। ओके, दैट इज अबाउट द क्वेश्चन। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9, वाटर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम?
हम लोग इसके बारे में काफी बार अभी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक बार और बात करते हैं। वीड्स क्या है? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स। ओके, weeds are unwanted wild plant that grow in the field. Okay, weeds compete with the crop for nutrients, light, and space. As a result, crop plants get lesser nutrients, light, and space for their development. Some important weeding methods are: weeds can be controlled using weedicides. Okay, it is a chemical which is sprayed in the field to kill all available weeds. Weedicides are not harmful to crops. देखिए, weeds जो है अनवांटेड प्लांट्स हैं जो खेतों में उगाते हैं, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग केमिकल्स वीडिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ मैनुअल प्रोसेसेस हैं जैसे टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग वीड्स। ओके, ये भी एक जो है टिलिंग बिफोर सोइंग जो है, इससे भी हम लोग जो है वीड्स रिमूवल कर सकते हैं। टिलिंग uproots the weeds. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. ओके, वीड्स को जो है रिमूव करने का बेस्ट टाइम ये होता है कि वो फ्लावरिंग और सीड्स जब उनका शुरू हो जाए उससे पहले उनको जो है हटा दिया जाए। बिकॉज if the flowering and seed production will take place, then it will be very difficult for the next crop whenever we will grow. Okay, the number of weeds plant will grow in multiple times because of their new seeds that is available in the soil. So removal of weeds is done should be done before their flowering and seeds production. Next point, the manual method of removing weeds is with the help of a खुरपी। ओके, जो मैनुअल मेथड है रिमूवल ऑफ weeds का वो है खुरपी का प्रयोग करके। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर अपरूटिंग और कटिंग ऑफ weeds क्लोज टू द ग्राउंड। ओके, मैनुअल प्रोसेस से भी weeds रिमूव किए जा सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sorry, we have left one question. Question number 6. What is irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve water. Okay. Irrigation इसके बारे में हमने कई बार बात कर चुके हैं। Irrigation is क्या? What it is? Supply of water to crops at appropriate interval is called irrigation. Once again, supply of water to crops at appropriate interval is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies according to different seasons, crops and soil types. Okay. Two methods of irrigation which help in conservation of water are: first, sprinkler system. Okay. Sprinkler system क्या होता है? This system is more useful on uneven land. जहाँ जमीन समतल नहीं है वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत इफेक्टिव है। वैसे जहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी कम है वहां के लिए भी ये सही है। Having fewer water supplies. In this method, water is supplied using pipes to one or more central location within the field. When water is allowed to flow under high pressure with the help of a pump, it gets sprinkled on the crop. Drip system. Second जो है हमारा drip system है। In this system, water is delivered at or near the roots of plants. ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रिप सिस्टम क्या कहता है? डायरेक्टली प्लांट के जड़ों के पास जो है इसके पॉइंट्स बनाए जाते हैं जहाँ की ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर वहां गिरता है और ये इस तरह से जो है वाटर का जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स का वो कम वाटर में ही हमारा काम हो जाता है। दिस इज द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन as there is no wastage of water at all. This method is important in area where water availability is very poor. Okay, तो ये आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. Okay, ये जो प्रोसेस
दिया हुआ है, दैट इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। तो इसमें आपको इसको सेट करना है, जैसे कि सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, मैन्योरिंग, प्लाविंग द फील्ड, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये जो है अनअरेंज्ड है, इसको आपको अरेंज करना है। ओके, आपका आंसर इस तरह से बना सकते हो। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट इज प्लाविंग द फील्ड, थर्ड sowing, fourth manuring, fifth irrigation, sixth harvesting, and seventh sending crops to sugar factory. This will be your answer. Come to the next question. Question number 11. Complete the following word puzzle with the help of clues given below. Down and across. Okay, आपके पास एक पजल दिया हुआ है, आपको डाउनवर्ड से एक बार फिल करना है और एक बार हॉरिजॉन्टल फिल करना है, और आपको जो है इस पजल को फिल कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट डाउन में हम लोग देखते हैं, प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, that is called what? Irrigation. So I is written double R I double R I G A T I O N, irrigation. Okay, next, keeping crop grains for a long time under proper condition. दो नंबर, that is storage. So S T O R A G E, storage. Completed. Third is fifth. Okay, certain plants of the same kind grown on a large scale, that is called certain plant of the same kind grown on a large scale, that is called what? Crop. Okay, so we will complete the crop in fifth. C R O P, crop. Next, across. Across check करेंगे. Third, a machine used for cutting the matured crop. जो मशीन हम लोग यूज करते हैं मैच्योर्ड क्रॉप को काटने के लिए, उसको क्या कहते हैं? हार्वेस्टर. ओके, तो H A R V E S T हमारा मैचिंग है, O R, हार्वेस्टर. ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अक्रॉस, a rabi crop that is also one of the pulses. चेक करिए, फोर्थ रबी क्रॉप है जो कि हमारा एक दाल भी है, दैट इज व्हाट? ग्राम. सो G R A M, ग्राम. मैच हो गया. सिक्स्थ, a process of separating the grain from chaff, that is called winnowing. So you have to fill here winnowing, WINNOW, winnowing. So in this way we have completed it, this puzzle. Now for extended learning activities and project. Okay, मैं इसमें थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ. Question number 1, sow some seeds in the soil and arrange to water them by drip irrigation. Observe daily. Okay, आपको क्या करना है कि कुछ सीड्स जो है सॉइल में सो करना है, और आपको अरेंज करना है वाटर फॉर ड्रिप इरिगेशन. आपको ये करने के लिए है, आप ड्रिप सिस्टम लगाओ, कुछ सीड्स को सो करो सॉइल में. ओके, और तो आप क्या क्या फिर आपको ये कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने हैं. फर्स्ट, डू यू थिंक इट कैन सेव वाटर? डेफिनेटली ये वाटर सेव कर सकता है, क्योंकि ड्रिप बाय ड्रिप जब रूट्स को डायरेक्टली वाटर मिलेगा, तो जो वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए, जिस प्रोसेस के थ्रू, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा वाटर बर्बाद होता है, वेपराइज हो जाता है. ओके, और सॉइल में चला जाता है या वेपराइज हो जाता है, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट. ओके, तो उसमें वाटर जो है सेव नहीं हो पाता, और इस प्रोसेस में वाटर सेव होता है.
सेकेंड, नोट द चेंजेस इन द सीड्स। जब आप सीड प्लांट ग्रो करोगे तो सीड में क्या चेंजेस आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है, देखिए, आपको सबसे पहले क्या है कि सीड जो है, जैसे आपने उसमें इरिगेशन किया तो सीड जो है स्वेल होगा, और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, उसमें प्लूम्यूल और रेडिकल आएंगे। ओके, प्लूम्यूल प्लूम्यूल जो है स्टेम और लीव्स बनाएगा, और जो रेडिकल है वो डाउनवर्ड्स जाएगा इन द सॉइल एंड दे विल दैट विल फॉर्म रूट। ओके, तो दैट विल बी द चेंजेस इन द सीड्स। क्वेश्चन नंबर 2, collect different types of seeds and put them in small bag. Attach these bags इन हर्बेरियम फाइल एंड लेबल देम। आपको क्या करना है कि अलग अलग प्रकार के जो है सीड्स कलेक्ट करना है छोटे छोटे बैग्स में, और उसको आपको हर्बेरियम फाइल में लेबल पेस्ट करना है, और उनको नेम के साथ लेबल करना है। ओके, ये आप करोगे। थर्ड क्वेश्चन, collect few agricultural machines picture and paste in a file with their name and uses. Okay, ये भी आपको करना होगा। मशीन जो भी एग्रीकल्चरल मशीन्स है, आपको जानकारी है, कुछ आप इंटरनेट में अवेलेबल है, सारे इंटरनेट में अवेलेबल है। आप पिक्चर्स ले लीजिए और उनको पेस्ट करिए, उनका नेम लिखिए और यूजर्स भी लिखिए। ओके, प्रोजेक्ट वर्क, आपको प्रोजेक्ट वर्क में करना क्या है, विजिट ए फार्म, नर्सरी और ए गार्डन नियर बाय, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट। आपको कोई पास के गार्डन में या जो है नर्सरी में जाना है और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ सीड सिलेक्शन, और उसे पता करना है कि सीड सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है। वो आपको बताएंगे कि सीड सिलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सीड अच्छा होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्लांट्स जो है अच्छा बनेगा, तो इसके लिए जरूरी है कि सीड्स अच्छा हो। सेकंड है मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन के मेथड तो आपने चैप्टर में पढ़ा, बहुत सारे हैं, और यही सारे जो हैं फार्म में यूज किए जाते हैं। जैसे कि जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें कि मोट हो गया, पुली सिस्टम, सेकंड चेन पंप, तीसरा ढेकी और राहट, ये तो पुराने जो समय के हैं जो कि पहले ज्यादा यूज किए जाते थे। अभी तो नॉर्मली ये सब यूज बहुत ही कम क्षेत्रों में किए जाते हैं। जो मॉडर्न मेथड है उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम और मोटर मोटर के यूज किए जाते हैं। ओके, that is the method of irrigation. Third, effect of extreme cold and extreme hot weather on the plant. Okay, जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो उससे प्लांट जो है उनके पौधे खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और एक्सट्रीम अगर हॉट वेदर होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, और अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो प्लांट्स जो है सूख जाएंगे। ओके, इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस रेन ऑन द प्लांट, जब कंटिन्यूअस बारिश होती है प्लांट्स में और वाटर लॉगिंग बहुत हैवी होगा, उनके लीव्स तक पहुंचेगा, उनके जो है फ्लावर्स तक अगर पहुंच जाएगा तो उससे जो है वो सड़ जाएंगे और क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, फिफ्थ इज फर्टिलाइजर एंड मैन्योर यूज्ड। आपको पता करना है कि उस नर्सरी में किस तरह का फर्टिलाइजर और मैन्योर यूज किया जा रहा है। ओके, तो दिस इज योर प्रोजेक्ट वर्क and other activities, and I have discussed already. We have completed the question answer of this chapter, and before that we have discussed the summary of the chapter, and before that we have studied the keywords. So now we have completed this chapter of crop production and management. So I request all you friends and kids, whoever is studying, please watch this video more and more and get the knowledge, all the knowledge, and it will make you more comfortable in understanding the chapter. Okay, so pay attention, learn more, get more, and if any one of you is new to my channel, please subscribe my channel to get updates, further updates of my channel. Okay, today I have completed this chapter. In the next video, I will start the second chapter, and normally I am uploading the videos every third day. Okay, normally every third day in the morning 6 a.m. Okay, so thank you all. Thank you with for being with me for learning this chapter. Okay, we will meet again. तब तक के लिए bye bye.